ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। रात लगभग 9 बजे मेरे घर के नज़दीक एक रोड सुनसान से जो है मुझको उठा लिया जाता है, जबरन उठा लिया जाता है। मैं कभी भी इसको अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ। अरेस्टिंग वो होती है जो हमारे भारतीय कानून के अनुसार किसी को कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, 24 घंटे से ज़्यादा रिमांड बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेरी किडनैपिंग हुई तो उससे पहले मेरा एक खुशहाल छोटा सा घर था पुरानी दिल्ली में, उसमें मेरे अब्बा जी थे, मेरी अम्मा थी। लेकिन जब मैं लौट कर आया, आज़ाद हुआ 14 साल बाद, तो देखा कि पिताजी घर पे नहीं और मेरी माँ जो है एक ज़िंदा लाश की तरह मुझको मिली, क्योंकि उनको पैरालाइज हो चुका था। मेरे शरीक हयात इस वक्त मेरी बीवी हैं, उन्होंने भी 14 साल इंतज़ार किया। हम साथ में पढ़ते थे जब मेरे साथ किडनैपिंग ये घटना घटी थी, उससे पहले से। 14 साल का जो आपका इतना लंबा संघर्ष था, जिसमें आपने कानून के ज़रिए आप वहाँ से निकले, आज आप एक बात मानते हैं कि कानून अंधा होता है लेकिन सबके लिए न्याय देता है। RPD 24 ਵੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਠਾਕੁਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਖਾਨ। ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਫਰੇਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਠੱਪਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया। RBT के 24 के दर्शकों और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ रहेगी, क्योंकि दिल्ली ਦੇ वसनीक ने। सर, आप ये बताएं कि जिस तरह इसके बैक पेज पे लिखा है कि एक आम इंसान को उठा लिया जाता है और उसको दहशतगर्द या टेररिस्ट का ठप्पा उसके ऊपर लगाया जाता है और उस इंसान को अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा वो बाद में जानेंगे। लेकिन ये मामला हुआ क्या था? तो आपके प्रश्न से पहले मैं थोड़ी सी
तस्हीह करना चाहूँगा कि रिस्पेक्टेड एस मुरलीधरन साहब जो है चीफ जस्टिस के रूप में उड़ीसा से रिटायर्ड हुए हैं हाई कोर्ट से, और दिल्ली में भी जज रहे हैं। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा रिटायर्ड हुए हैं। जहाँ तक मेरी कहानी की बात है तो बात शुरू होती है 1998, जब मेरी लगभग 18-19 साल की उम्र रही होगी। मैंने सही से दुनिया और दिल्ली भी सही से नहीं देखी थी, और चीज़ों को सीखना और समझना ही की शुरुआत थी। और फरवरी का महीना था, एक रात लगभग 9 बजे मेरे घर के नज़दीक एक रोड सुनसान से जो है मुझको उठा लिया जाता है, जबरन उठा लिया जाता है। मैं कभी भी इसको अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ। अरेस्टिंग वो होती है जो हमारे भारतीय कानून के अनुसार किसी को कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, 24 घंटे से ज़्यादा रिमांड बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझको अचानक एक रात को उठाया गया, 7 दिन अपने पास रखा गया, छुपा के रखा गया। सिविल ड्रेस में लोग थे वो जिन्होंने मुझको किडनैप किया था, इसलिए मैं उसको किडनैपिंग ही कहता हूँ आज भी। और उन 7 दिनों में मेरे साथ टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको हम ने शायद फिल्मों में ही देखा या पढ़ा होगा। अभी भी मैं समय को याद करता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े होते हैं। 7 दिन तक मेरे साथ टॉर्चर किया गया और ब्लैंक्स पेपर पे साइन कराए गए। उसके बाद कोर्ट में पेश करके मुझको दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो NCR में ब्लास्ट हुए थे 1996-97 में, उनमें मुझको डाल दिया गया। फिर एक 14 साल के लंबा सफ़र एक इंसाफ की लड़ाई के लिए मुझको लगा, और आखिरी केस मेरा 2012 को रिलीज़ हुआ। जब तक मेरी उम्र 35 साल हो चुकी, और 35 साल 32 साल लगभग जी। और लेकिन इस 14 साल में बहुत कुछ खो दिया है। जब मेरी किडनैपिंग हुई तो उससे पहले मेरा एक खुशहाल छोटा सा घर था पुरानी दिल्ली में। उसमें मेरे अब्बा जी थे, मेरी अम्मा थी। लेकिन जब मैं लौट कर आया, आज़ाद हुआ 14 साल बाद, तो देखा कि पिताजी घर पे नहीं हैं, और मेरी माँ जो है एक ज़िंदा लाश की तरह मुझको मिली, क्योंकि उनको पैरालाइज़ हो चुका था। मेरे जेल में जाने के 2 साल के बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी माताजी को संभालना पड़ा, मेरी पैरोकारी को, इंसाफ की लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन हर किसी की एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा लौटेगा। कब? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10, 12। जब उनको 2010 में 12 साल हुए मेरी पैरोकारी और केस चलते हुए, तो उनको ब्रेन अटैक हुआ और वो पैरालाइज्ड हो गई। तो जब मैं आज़ाद होकर 14 साल के बाद लौटा तो उनको एक ज़िंदा लाश की तरह पाया, जैसे कि मैंने बताया। और मैं लेकिन फिर भी शुक्र करता हूँ कि मैंने बाप की तरह उनको खोया नहीं। माँ को पा लिया, 3 साल मुझको सेवा करने का उनका मौका मिला। लेकिन एक चीज़, 2 ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मिस की उनके रहते हुए भी। एक तो उनका हाथ का बना खाना साथ बैठ के नहीं नसीब हुआ, दूसरा उनके मुंह से मैं बेटा नहीं सुन पाया। तो ये जो किताब है, जो कि अक्टूबर 2024 में अभी कुछ दिन पहले ही पंजाबी में रिलीज़ हुई है, एक अपडेटेड वर्ज़न है, ऑनलाइन भी मौजूद है। इसमें मैंने अपने पूरे संघर्ष को लिखा है, किस तरह से मैं किस वातावरण में पैदा हुआ, और मेरे घर के नज़दीक पंजाबी फैमिली थी, उनके साथ मेरा खेलना कूदना होता था। और धीरे धीरे फिर परवान हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है नॉर्मल, लेकिन एक घटना इस तरह घटती है। इस किताब के अंदर कई तरह की आपको खिड़कियां खुलती हुई दिखेंगी। इसमें पीड़ा दिखती है, संघर्ष दिखता है। इसमें कोर्ट की जो कानूनी चाराजोई होती है वो दिखती है। जेल की सख्त और तंग और घुटन भरी जो ज़िंदगी होती है वो आपको इसमें दिखेगी। और रिलीज़ होने के बाद एक और प्यार और ख़ुशी की भी आपको इसमें खिड़की खुली हुई दिखेगी, जो कि मेरे शरीक हयात इस वक्त मेरी बीवी हैं। उन्होंने भी 14 साल इंतज़ार किया। हम साथ में पढ़ते थे जब मेरे साथ किडनैपिंग ये घटना घटी थी, उससे पहले से। लेकिन उनको था कि जैसे मेरी माँ को उम्मीद थी कि एक दिन वो लौटेगा, वो कौन सा दिन होगा वो पता नहीं था, लेकिन
इसी तरह मेरे पार्टनर को भी यकीन था कि वो लौटेगा, कब लौटेगा ये इतना उसको नहीं पता था। तो उन्होंने इंतज़ार किया और बहुत हिम्मत की बात है, 14 साल किसी वीर ज़ारा एक फ़िल्म सुनते हैं कि उसमें भी किसी ने 14 साल इंतज़ार किया। तो लोग कहते हैं कि वो तो एक कहानी थी, मेरी एक ज़िंदा मिसाल है। तो इसी तरह बताना चाह रहा था कि इसमें प्यार, मोहब्बत, संघर्ष, दर्द, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन साथ ही एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो आज हम सामना कर रहे हैं या हमारा समुदाय सामना कर रहा है, और ये किताब सिर्फ़ मोहम्मद आमिर की एक कहानी नहीं है, बल्कि मुझ जैसे ऐसे कई सारे निर्दोष लोग हैं जो कि आज़ाद होकर निकले हैं या आज भी इंसाफ की राह को तक रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये उनकी भी कहानी को दर्शाता है। एक विक्टिम, एक सर्वाइवर की कहानी ज़रूर सामने होती है, हाय बेचारा जेल के अंदर किस तरह रह रहा होगा वगैरह वगैरह, लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष भी होता है जो हमेशा समाज और मीडिया से छुपा होता है, वो होता है उसका परिवार। वो किस तरह से किन परेशानियों का सामना कर रहा होगा, उसको किस तरह की बातों को सुनने को मिल रहा होगा। इस किताब में मैंने डिटेल में लिखा है मेरे परिवार, मेरे माता पिता को किस तरह से सामना करना पड़ा, और वो एक कठिन समय था उस दौर का। तो जो मैं पहले कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ़ एक आमिर की कहानी नहीं, आमिर जैसे कई लोग जो है इस संघर्ष से गुज़र रहे हैं, और साथ ही जो हमारा समुदाय, मुस्लिम समुदाय आज झेल रहा है, वो आज से 30-35 साल पहले पंजाब के अंदर भी पंजाब के वासी जो है वो झेल चुके हैं। फ़र्क मुझको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ ये आया है कि उस वक्त सर पे पगड़ी और दाढ़ी होती थी, और आज सर पे टोपी और दाढ़ी होती है। पंजाब उस दौर से निकल आया है, लेकिन हम अभी उसका सामना कर रहे हैं। मुझको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि पीड़ित जो है या टारगेट जो क्लास या समुदाय या वर्ग होता है, वो डिपेंड करता है समय और राजनीति पे। एक समय था, पंजाब में था, फिर कश्मीर का आया, फिर झारखंड छत्तीसगढ़ में आपको आदिवासी का देखते हैं, फिर दलितों के साथ आप देखते हैं, अब मुसलमान टारगेट पे हैं। तो ये समय का चक्र है और राजनीति है जो कि किसी को टैबू के दायरे में ला देती है। सर जैसे जो आपका इसमें अनुभव रहा, जो अगवा करने का कारण था, क्या वो धर्म के आधार के ऊपर ही टारगेट किया गया था या कोई और रीज़न भी थे? तो बहुत अच्छा सवाल है, और अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आपके साथ ही क्यों, और अगर सिर्फ हम कहते हैं कि एक समुदाय विशेष की वजह से आपको किया गया, तो 15 करोड़ मुसलमान हैं, 15 करोड़ में आप ही क्यों? इसके एक दो जवाब हैं, लेकिन उससे पहले, जवाब से पहले एक चीज़ और साफ करना चाहूँगा कि जेलों में मैं कईयों से ऐसे मिला हूँ जिनका कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ ये था उनकी एक ख़ास पहचान है या किसी एक वर्ग ख़ास से टारगेट अपना संबंध रखते थे, लेकिन वो हालात ऐसे रहे कि उनके फ्रेम में वो आने में आसानी रही और उनको फंसा दिया गया। लेकिन मेरे साथ है कि मेरा रीज़न है, और उसका रीज़न बहुत डिटेल में मैंने इस किताब में लिखा है। अगर वो दर्शक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन साथ ही ये दो जो मैं मिसालें देना चाह रहा था, पहली ये कि पंजाब के अंदर जब उग्रवाद का समय था, तो उस वक्त भी हमने तो बचपन से सुना ही है, बचपन के दौरान कि किस तरह के हालात रहे हैं, या फिर लगभग 20-25 साल पहले एक फ़िल्म आई थी माचिस, उसमें भी दिखाई देता है कि पंजाब में किस तरह के हालात और वहाँ के लोगों ने किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फॉल्स इनकाउंटर हुए, अरेस्टिंग्स हुई वगैरह। तो ये भी दर्शाता है चीज़ों को। लेकिन एक आसान जवाब ये है कि दर्शकों के लिए, अगर राह पे रोड पर चलते हुए किसी शख्स को कोई गाड़ी टक्कर मार जाती है और उससे बिस्तर पे ये पूछा जाए तेरे साथ ही क्यों टकराई, तो शायद उसका जवाब देना मुश्किल है। जी, कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो 14 साल का जो आपका इतना लंबा संघर्ष था, जिसमें आपने कानून के ज़रिए आप वहाँ से निकले, आज आप एक बात मानते हैं कि कानून अंधा होता है लेकिन सबके लिए न्याय देता है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि
देर से सही मुझको न्याय मिला है। ये ये जो देरी होती है, ये जस्टिस में इंसाफ पाने में समय जो लगता है प्रक्रिया में, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जो आज हमारे आज़ाद भारत में कानून चल रहा है, कानून व्यवस्था है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, कॉलोनियल टाइम की। अब पहली बात तो मेरी ये समझ में नहीं आती, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, एक जायज़ बात के लिए बात उठाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त देता है, भारतीय संविधान उसको इजाज़त देता है, तो और उसके ऊपर जो है आईपीसी की धारा 121 देशद्रोह लगा दिया जाता है। ये देशद्रोह तो अंग्रेज़ लेकर आए थे। एक देशवासी देशद्रोह कैसे हो सकता है? अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी परेशानी को अगर वो रखना चाहता है, मैं एक आम जनरल बात बता रहा हूँ, तो बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कि जो कानून बनाए गए हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए गए हैं और उसी प्रक्रिया से ये आगे धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कई कारण होते हैं कि न्याय पाने वालों को इंतज़ार करने का समय उनका बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और है, कहीं कहीं जानबूझकर भी ऐसा किया जाता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद फिर कई बड़ी हस्तियों को आरोपी बनाया गया, जिसमें एल के अडवाणी साहब थे, उमा भारती थी, मुरली मनोहर जोशी, जो कि बाद में संवैधानिक पदों पर भी हमारे देश के बैठे। आप देखिए अडवाणी जी आज भी ज़िंदा हैं, मैं चाहता हूँ ज़िंदा रहें, स्वस्थ रहें, दुआ है, शुभकामनाएं हैं। पर सवाल यह है कि वो केस में तो उनको सज़ा हुई नहीं। मीडिया ने तो सब देखा कि किसने उकसाया और किसने गिराया, और उनको फ़ौरन बेल भी दे दी गई। लेकिन वहीं जब कोई दूसरे समुदाय का, कमज़ोर गरीब समुदाय या वर्ग का इंसान फंसता है, तो उसको ना बेल मिलती है और इंसाफ मिलने में बड़ा टाइम मिलता है। इसी के साथ साथ एक और मिसाल देना चाहूँगा, जिससे कि हमारे दर्शक समझने में थोड़े से आसानी महसूस करेंगे। मैं उस हीरो का नाम नहीं बताना चाहूँगा बॉम्बे में, लेकिन वो भी टाटा में फंसे थे और उनके पिताजी हीरो भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। उन्होंने भागदौड़ की अपने बेटे के लिए, जो स्वाभाविक है, कोई भी बाप बेटे के लिए करेगा। वो बेल पे भी निकले। टाटा जैसे कानून, जो कि 1984 में जब पंजाब के अंदर उग्रवाद का समय था, उस समय ये बनाया गया था, जिसमें सालों लोग सड़े हैं, उनको बेल नहीं मिलती थी, लेकिन उस हीरो को जो है बेल भी मिली। फिर डिसीजन हुआ, सज़ा भी मिली, बहुत नाम मात्र, और आज भी वो बाहर है। लेकिन मैंने खुद जब मैं जेल में गया तो कई सिखों को मैंने जेल में देखा, जो कि उस समय मैं बता रहा हूँ, जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने काफ़ी सिखों को देखा जो कि लंबे लंबे समय से टाटा के अंदर बंद थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल, लेकिन ना उनका केस का फैसला हो रहा था, ना बेल मिल रही थी। इसी तरह एक और केस है, बहुत चर्चित रहा है, वो भी बॉम्बे का है, हीरो रहे हैं, हिट एंड रन का केस। 5 लोगों को, फुटपाथ पे लेटे हुओं को गाड़ी पे चढ़ा दिया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उस पे भी उस महान शख्सियत के ख़िलाफ़, हीरो के ख़िलाफ़ केस चला, लेकिन बेल मिल गई उसको। और जब बेल मिल गई, केस चलता रहा, डिसीज़न हुआ है, जिस दिन डिसीजन हुआ उनको कन्विक्ट करार दिया, इक्विटल, उनको बरी नहीं किया गया, उनको कन्विक्ट सज़ा करार दिया गया और और सेम डे पे बेल मिल गई। तो जो उनको बेल दी गई, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा सवाल वहाँ नहीं है, बल्कि सवाल मेरा ये है, उनको जो बेल मिली या उससे पहले वाले केस में जो उदाहरण दिया मैंने, टाटा में जो बेल दी गई, वो उनका संवैधानिक हक था। लेकिन मेरे जहन में सवाल ये आता है कि इसी तरह के हिट एंड रन के केसेस हों या टाटा में जिनको बेल मिली आसानी से, और फिर बाद में कई केसों में तो बहुत जल्दी जल्दी बेल और पैरोल और फरलो मिलती रही है। 302 के केस में, बहुत हरियाणा का एक केस है, बाबा जी हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी कन्विक्शन होने के बाद भी फरलो मिली। तो कानून तो हमारे देश का एक है, संविधान एक है, तो ये अंतर क्यों है, ये समझ में नहीं आता है। लोगों के लिए एक जैसा क्यों? किसी के लिए जो है रियायत मिल जाती है, किसी को नहीं। हालांकि उसी सेक्शन के तहत बहुत सारे लोग जो है जेलों के अंदर बंद हैं, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलता है। तो इसको मैं मकड़ी के जाल की तरह कानून को कहता हूँ कि एक
कानून जो है हमारा मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें छोटे कीट पतंगे जिस तरह से मकड़ी के जाल को तोड़ जाते हैं, इसी तरह जिस तरीके से मकड़ी के जाल को बड़े मक्खियाँ तोड़ जाती हैं और छोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं, इसी तरह कानून का जाल है जिसमें गरीब, असहाय, अशिक्षित और जो है कमज़ोर लोग वो बहुत आसानी से फंस जाते हैं कानून के जाल में। और जो बाहुबली होती हैं, 100 वाले होते हैं, पैसा जिनके पास होता है, वो इस कानून के जाल को तोड़ के निकल जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर जी, आपने हमारे साथ बात की। बात तो ऐसा है कि समय में रह के करनी पड़ती है, वरना अभी और भी बहुत सवाल थे आपके साथ करने वाले। लेकिन हम अपने दर्शकों को साथ ही साथ ये बता दें कि ये जो किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब ले सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रकाशन बताना चाहूँगी, बाबा बूजा सिंह प्रकाशन, है ना जी? एक बार बता दीजिए कि यहाँ कहाँ से ये किताब जो है तो पंजाब के मुख्य पब्लिशर के यहाँ से ये कॉपी मौजूद हैं, जैसे कि तर्क भारती प्रकाशन बरनाला से, साथ ही बाबा बूजा सिंह पब्लिकेशन से, और ये फ्लिपकार्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। दहशतगर्दी द फर्जी ठप्पा। मैं पंजाबी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताया गया है। और हिंदी में भी है, अमेज़ोन पर है ऑनलाइन, इंग्लिश में भी है, अमेज़ोन पर है। फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट, माई 14 ईयर स्ट्रगल टू प्रूव माई इनोसेंस के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये किताब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 84 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। RPD 24 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD 24 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ।